ویلکم ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی ویمپائرز۔ ڈان ویل نامی یہ چھوٹا سا قصبہ تقریباً 70 گھروں پر مشتمل ہوگا۔ یہ قصبہ بجلی اور گیس جیسی سہولتوں سے محروم تھا، لیکن یہاں پر رہنے والے امن پسند لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ قصبہ چاروں طرف سے جنگلات سے گھرا ہوا تھا، جس پر حکومت کوئی خاص توجہ نہیں دیتی تھی۔ یہاں کے لوگ نہایت سادگی سے اپنی زندگی بسر کرتے۔ لوگ سردیاں شروع ہونے سے پہلے ہی 2 مہینے کی خوراک گھروں میں جمع کر لیتے، کیونکہ شدید برف باری کی وجہ سے پورا گاؤں ٹھٹر جاتا اور پھر اس عرصے کے دوران سورج بھی نہیں نکلتا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت ہوگا کہ اچانک ایک سایہ حرکت میں آیا جو برف پر چلتا ہوا فرڈ کے گھر کے آگے رکا۔ فرڈ کا گھر گاؤں کے سرے پر تھا۔ دروازہ بجایا گیا۔ فرڈ اور اس کی بیوی جاگ اٹھے۔ فرڈ دروازے کے پاس گیا اور پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، میں میگ ہوں، باہر آؤ۔ میگ؟ فرڈ اور اس کی بیوی دونوں حیران ہو گئے، کیونکہ میگ پچھلے 1 مہینے سے لاپتہ تھا۔ اس کے بیوی اور بچے اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے۔ گاؤں میں پولیس تو تھی نہیں، اس لیے گاؤں والوں نے بھی ان کی مدد کی، مگر نتیجہ 0 رہا۔ دروازہ پھر بجایا گیا۔ فرڈ جلدی سے لانگ کوٹ پہن کر باہر گیا اور اس کی بیوی واپس کمرے میں چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو اپنے ہسبینڈ کو بستر پر نہ پا کر وہ پریشان ہو گئی اور پورا گھر چھان مارا۔ جب فرڈ نہ ملا تو اس نے اپنے پڑوسیوں سے مدد مانگی۔ پھر کیا تھا، بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور سب اسے تلاش کرنے نکل پڑے۔ گاؤں کا سردار، جو کہ 40 کے قریب کا شخص تھا، جس کا نام مارٹن تھا، مارٹن نے فرڈ کی بیوی سے رات کا احوال سنا تو پریشان ہو گیا۔ مارٹن نے فرڈ کی بیوی کو خاموش رہنے کا کہا اور اس بات کا ذکر صرف فادر جوزف سے کیا۔ اس قصبے میں صرف ایک ہی چرچ تھا اور اس چرچ میں ایک ہی فادر تھے جو بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ فادر بھی مارٹن کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ فرڈ کو بہت تلاش کیا گیا، آس پاس کے جنگلات بھی دیکھے گئے، مگر وہ نہ ملا۔ رات کو ہونے والی برف باری نے پیروں کے نشان بھی مٹا دیے۔ شام ہو گئی تو سردار نے کہا، اب اپنے اپنے گھروں کو جایا جائے، کل فرڈ کو جنگل کے اندر جا کر تلاش کیا جائے گا۔ صبح کا اجالا پھیلا تو ایک اور بری خبر سامنے تھی کہ رات کو ڈائس بھی غائب ہو گیا ہے۔ اس کے گھر میں صرف ڈائس اور اس کا بیٹا رہتا تھا۔ اس کے بیٹے کا کہنا تھا کہ رات کو فرڈ نے اس کے باپ کو گھر سے باہر بلایا تھا، جسے خود اس کے بیٹے نے موم بتی کی روشنی میں دیکھا تھا۔ اب بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور گاؤں والوں نے 2 لوگوں کی تلاش شروع کر دی۔ جنگل بے حد گھنا تھا، اس لیے جنگل میں ہمیشہ اندھیرے کا راج تھا۔ سب لوگ 10-10 کی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر جنگل کی الگ الگ ڈائریکشن میں چل دیے۔ آخر ایک ٹولی کو جنگل کے بیچوں بیچ فرڈ کی لاش مل گئی، جس کا سر اس کے تن سے جدا تھا۔ سب لوگ واپس آ گئے لاش لے کر اور سردار اور فادر کے پاس پہنچ گئے۔ فادر نے جب لاش کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے اور لوگوں کے لیے یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اگر فرڈ مر چکا ہے تو کیا ڈائس بھی؟ مگر اس کی لاش تو کہیں نہیں ملی۔ سردار نے فادر کی پریشانی بھاپ لی اور ان سے پریشانی کا سبب پوچھنے لگا۔ فادر نے سب لوگوں کی نظروں سے بچ کر سردار کی توجہ فرڈ کی دھڑ کی رگوں کی طرف کروائی، جس پر ایک قطرہ بھی خون موجود نہ تھا۔ سردار کی آنکھیں پھیل گئیں، مگر اس نے اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے لوگوں سے کہا،
लगता है इस पर शेर ने हमला किया है। सब लोग सरदार की बात से मुतमईन हो गए और घरों को चले गए। लाश को कल दफनाया जाना था। लोगों के जाने के बाद सरदार ने अपने खदशे का इजहार किया तो फादर ने हाँ में सर हिलाया। सरदार का ख्याल था कि फर्ड किसी वैम्पायर का शिकार हुआ है। फादर ने कहा अभी साबित हो जाएगा। फादर चर्च से अपने कमरे में गए जो कि चर्च में ही था। जब वापस आए तो फादर के हाथ में हथौड़ी और एक लकड़ी की सलीब थी। फादर ने सलीब फर्ड के दिल के मकाम पर रखी और हथौड़ी की ज़र्ब से उसके दिल में उतार दी। फर्ड के मुर्दा जिस्म ने झुरझुरी ली और साकित हो गया। सरदार के चेहरे पर खौफ की परछाइयां छा गई। उसके बाद दोनों ने मिलकर लाश को संदूक में बंद किया और सुबह दफना दिया गया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब सुनते हैं आगे की कहानी। अगली सुबह एक और शख्स गायब था। उसे 2 दिन तक लगातार ढूंढा गया मगर वो न मिला। ये शख्स घर में अकेला रहता था। उसका कोई नहीं था। एक बीवी थी जो 3 साल पहले इंतकाल पा चुकी थी। उधर सरदार फादर से मिला और दोनों ने फैसला करके सब लोगों को इकट्ठा किया और उनको वैम्पायर्स वाली बात बता दी। फिर क्या था, सब गांव वालों को सांप सूंघ गया। सरदार ने कहा अभी उनकी तादाद कम है, सिर्फ 3। हमें उन्हें ढूंढकर खत्म करना चाहिए। लोग ऐसा करें कि अपने घरों से रात के वक्त निकलने से गुरेज करें। अगर बहुत मजबूरी के साथ निकलना भी पड़े तो साथ 2-3 फर्द होने चाहिए। इसके अलावा आप सबको ऐसी सीटियां दी जाएंगी जिनकी आवाज़ खासी बुलंद होगी। ये सीटी इमरजेंसी होगी और इसके अलावा अपने पास हिफाजत के लिए कोई हथियार रखा जाए। यहाँ के लोग वैसे भी रूहों को बहुत मानते थे। अब तो शाम होते ही गांव में हौलनाक सन्नाटा छा जाता, गोया लोग अपनी आवाज़ निकालने से भी डरने लगे हों। फिर हर रात लोगों के दरवाजे बजाए जाने लगे। सारी सारी रात सीटियां बजने लगी। यूं इस गांव की रातें भी हराम हो गईं। सिर्फ चर्च का दरवाज़ा न बजाया जाता। एक बार फिर सब लोग जमा हो गए और सरदार से इस मसले का हल पूछने लगे। इस बार फादर ने तजवीज़ पेश की कि गांव के नौजवान टोलियां बनाकर बारी बारी पहरा देंगे और अपने पास हथियार और मशाल वगैरह भी रखेंगे। उसी रात नौजवान पहरा देने के लिए निकल खड़े हुए। उन्होंने रात को एक साया जंगल से आते देखा तो उस पर गोलियां चला दी। वो साया चीखता हुआ जंगल में घुस गया। उसके बाद सारी रात कोई नजर नहीं आया। ये रात निहायत पुरसुकून गुजरी और सुबह होते ही एक टोली जिनमें फादर और सरदार भी शामिल थे वैम्पायर्स की तलाश में जंगल रवाना हुए, मगर उनका कोई निशान तक न मिला। 3 दिनों में पूरा जंगल छान मारा। उस दौरान एक टोला जो रात को पहरा दे रहा था, उसका एक आदमी टोले से अलग हो गया और फिर वो भी गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया। अब उनकी तादाद में एक इजाफा और हो गया था। फिर तो जैसे हर तरफ मौत ने अपने पंजे काट दिए। इस बार फादर ने कहा कि ऐसी जगह वैम्पायर्स को तलाश करना चाहिए जहां कोई आता जाता ना हो। तब सरदार ने कहा ऐसी जगह सिर्फ एक ही है और वो है पुराना कब्रिस्तान, जिसे आबादी बढ़ने की वजह से छोड़ दिया गया। इस कब्रिस्तान में एक चर्च भी था जो कि अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। सरदार ने 10-12 लोगों को लिया जिन्होंने हाथों में हथौड़ी और नोकदार लकड़ी की सलीब पकड़ रखी थी। जब ये लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्रें निहायत बोसीदा यानी बहुत पुरानी हो चुकी थीं। ये लोग चर्च की तरफ बढ़े। माहौल में अजीब सी वहशत बरपा थी।
चर्च के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि चर्च की एक दीवार गिर चुकी है। वो अंदर दाखिल हुए तो उन्हें वहां कुछ नजर न आया। फादर सबसे आगे थे। फादर तहखाने की तरफ बढ़ने लगे और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे कि अचानक उनका पांव फिसला और वो नीचे जा गिरे। फादर को अपनी गर्दन में चुभन का एहसास हुआ, लेकिन फादर जल्दी से उठ खड़े हुए और बाइबल पढ़ना शुरू कर दी। सामने चारों वैम्पायर्स कानों पर हाथ रखकर चिल्लाने लगे। फिर अचानक वैम्पायर्स ने उन पर हमला कर दिया, जिससे पिछले लोग ऊपर की तरफ भागे, मगर फादर ने फुर्ती के साथ हथौड़ी फेंककर तहखाने की खिड़की का कांच तोड़ दिया। खुशकिस्मती से उस दिन सूरज निकला था, जिससे धूप अंदर आने लगी। धूप का अंदर आना था कि वैम्पायर्स चीखते हुए पीछे की तरफ भागे और कोने में जा गिरे। फादर ने चीखते हुए नौजवानों को आवाज देकर बाकी खिड़कियां तोड़ने का कहा। फिर फादर ने आईने लाने को कहा तो फौरन ही आईने मंगवाए गए। तो धूप आईनों के जरिए से वैम्पायर्स पर डाली गई तो उनकी चीखों से माहौल लरज उठा और साथ ही उन्हें आग लग गई। वो रात गांव वालों के लिए सुकून की रात साबित हुई। जैक को जैसे ही जंगल की तरफ से आते हुए देखा गया तो लोगों ने उसे पकड़कर बांध दिया और फादर को बुलवाया। जब फादर आए तो लोगों ने कहा, ये कल का गायब है और आज लौटा है और इसकी गर्दन पर 2 निशान भी हैं। फादर ने कहा, रुको, मैं देखता हूं कि ये वैम्पायर यानी खून आशाम है कि नहीं। बाइबल पढ़ी गई, लेकिन जैक पर कोई असर न हुआ। फादर ने कहा, और तसल्ली के लिए मैं इसे चर्च ले जाता हूं। फादर जैक के साथ चर्च में दाखिल हुए और चर्च का दरवाजा बंद कर दिया। जैक को अपने कमरे में ले गए, जहां पहले ही 4 लोग बैठे थे, जो कि एंडरसन खानदान के थे। ये लोग गांव के आखिर में रहते थे। फादर ने जैक को डांटते हुए कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की, बेवकूफ लड़के। अभी रुक जाओ, हम अपनी तादाद बढ़ा लें तो फिर हमें कोई खतरा नहीं होगा, वरना पहले की तरह हम मारे जाएंगे। सबके होठों पर मुस्कुराहट आई, जिससे उनके 2 नुकीले दांत नजर आने लगे। फादर की वजह से ऐसे वैम्पायर्स पैदा हुए जो बाइबल से भी नहीं डरते थे। जी हाँ, अब फादर भी एक वैम्पायर बन गया था। जब उसे तहखाने में अपनी गर्दन पर चुभन का एहसास हुआ था, उसी वक्त एक चमगादड़ ने उसे काट लिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। अगली कहानी, खूनख्वार बिल्ली। नौजवान अपने बिस्तर पर सो रहा था कि अचानक कोई वजनी चीज उस पर गिर गई, और जब नौजवान की आंखें खुली तो मारे दहशत के उसकी घिघी बन गई। एक खौफनाक अंगारा बरसाती आंखों वाली बिल्ली उस पर सवार थी। और फिर सुनते रहिए।